Hello, beautiful people. My name is Manik Minhas. I am an engineer and have served as a vice president for a youth organization and worked in various startups, now creating an impact as a sociopreneur. So, not taking much time, guys, it's time to roll out the red carpet for our very special guest, Mrs. Sumit Bahadur, for today's important topic on how to evaluate the best startup opportunity in today's world. So Meet is a National Talent Scholarship holder from DPS and an IIT Delhi alumni who was part of very successful startups in his career, which is why he is the perfect choice to talk about it comprehensively. Whoever is looking out for different windows of opportunities, don't miss out this podcast because it can be a turning point for you as it was for me. So stay tuned for an enlightening episode. Thanks for the warm introduction. So, this is the best time to launch your own startup in India with people of all ages and walks of life from all corners of India starting their own companies, coming up with new, innovative, and unique ideas. In fact, the Indian startup industry right now has become the primary engine for driving growth in our country. It's creating jobs, it's creating wealth, and India जो है, it's become the third largest startup ecosystem in the world. उसका जो annual year-on-year growth rate है, it is 15%. So the startup industry alone, it was able to generate an estimated 50,000 new jobs in India last year. और इसीलिए the government of India has a new initiative also called the Startup India Scheme for development of startups in our country. तो ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़रूरी हो गया आज के कॉन्टेक्स्ट में. हमारा ब्रीफ बैकग्राउंड बताऊं तो तानिया एंड आई वी हैव कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. हम दोनों की मुलाकात यूएस में हुई थी जहां हम हायर एजुकेशन के लिए गए थे विद फुल स्कॉलरशिप्स. तानिया टॉप स्टूडेंट थी कीव के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से और मैं आईआईटी दिल्ली से था. और हम दोनों ने साथ साथ पढ़ाई करी, साथ साथ ग्रेजुएशन किया विद अ मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. हम दोनों जब यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से मिले सो वी फाउंड आउट कि हम लोगों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं. हम दोनों बहुत एम्बिशियस हैं, एडवेंचरस हैं. वी हैव अ कॉमन लव ऑफ आउटडोर स्पोर्टी एक्टिविटीज़ एंड वी बोथ लव चैलेंजेस, वी बोथ लव सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. हम दोनों के दोनों फॉरवर्ड थिंकर्स थे और हम लोगों को वी लव्ड सॉल्विंग ओल्ड कन्वेंशनल आइडियाज़ विद आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. हम लोग जब एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एचपी में काम कर रहे थे तो उस वक्त हमें रियलाइज़ हुआ कि हम लोग अच्छे एम्प्लॉयज़ तो हैं बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन लीडिंग टीम्स और हमारा जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है इट इज़ मोर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. तो वहीं पर जॉब करते करते वी डिसाइडेड कि हम लोग जो हैं वी डोंट वांट टू गेट ट्रैप्ड इन अ बिग कंपनी वर्किंग इन अ कन्वेंशनल हाई पेइंग जॉब जहाँ हमारे पास फैंसी टाइटल है, एक कॉर्नर ऑफिस है और हम लोग वहाँ फंस जाएंगे. We wanted to take the risk of working in a small startup and doing something challenging with lots of personal growth, wearing different hats and potential financial rewards. तो ये हम लोगों की उस वक्त की जो थिंकिंग है आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो आई थिंक दैट हम लोग अननोइंगली अपने आप को उस वक्त तैयार कर रहे थे फॉर आवर फ्यूचर जर्नी ऑफ स्टार्टिंग आवर ओन ग्लोबल बिजनेस विद एमवेज गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल. सो एचपी में काम करने के बाद तानिया शी जॉइंड अ टेक स्टार्टअप जहाँ पर शी वर्क फुल टाइम until she left it to focus full time on building her direct selling business with Amway, जो कि उन्होंने स्टार्ट करा था which she had started when someone in her company had exposed her to the opportunity. And as for me, HP के बाद मैंने एक स्टार्टअप टीम ज्वाइन करी एक छोटी सी कंपनी में, in a tiny company having 10 to 15 people. And that grew up to $1 billion turnover and it had a very successful IPO on the NASDAQ US stock exchange. और आज तक उस IPO के चर्चे होते हैं वहाँ पर. Till today it's talked about there. तो उस स्टार्टअप एक्सपीरियंस के बाद आई वॉज थिंकिंग कि अब आगे क्या किया जाए, व्हाट टू डू नेक्स्ट इन लाइफ, समथिंग विच वुड मैच माई एम्बिशंस एंड एस्पिरेशंस. और उस समय हम दोनों ने एवेलुएट किया तानिया के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को विद एन ओपन माइंड एंड वी checked out all aspects of profit generation, future growth potential, foreign markets, Indian market, etc. And we found out that this is an ideal startup opportunity for a virgin market like India. तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई इस बिज़नेस में और आज इस बिज़नेस की बदौलत we have a lifestyle of immense personal freedom
जहाँ पर हम लोग जो हैं 3 कंट्रीज़ में साइमल्टेनियसली रहते हैं एंड वी आर एंजॉइंग आवरसेल्व्स। सो आज की अगर हम लोग बात करें इंडिया में, तो एज यू नो दैट इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यंग एजुकेटेड मिडिल क्लास अमंगस्ट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो मीडियन एज है वो सिर्फ 28 ईयर्स ओल्ड है, comparing it to China, which is 37 years, USA, which is 38 years, and Europe, which is 44 plus, you know. और इंडिया में इस वक्त जो है वी हैव मोर देन 50,000 टेक्निकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बट अ वेरी लो इंटरनेट पेनिट्रेशन ऑफ ओनली 50%। अगर चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ पर 70% पीपल हैव एक्सेस टू इंटरनेट। इसकी वजह से देयर इज़ अ ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया फॉर न्यू स्टार्टअप्स। अभी रिसेंटली अकॉर्डिंग टू अ न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट, एक नई वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक बाय 2028 द इंडिया विल हैव प्राइवेट वेल्थ विच विल बी 2 times दैट ऑफ सिटीजन्स ऑफ यूके और जर्मनी। 2028 तक इंडियंस के पास पर्सनल वेल्थ जो है वो यूके और जर्मनी के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस लो इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट जब ये बढ़ेगा और इंडिया में जो वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगी और लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो वे विल पीपल बी स्पेंडिंग मनी ऑन? दे विल बी डेफिनेटली स्पेंडिंग इट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच विल इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जब इंडियंस चारों कोनों से पैसा खर्च करेंगे, सो दे विल बी डेफिनेटली स्पेंडिंग मनी टू ईट बेटर, लुक बेटर एंड लिव बेटर। वो पैसा खर्च करेंगे बेहतर हेल्थ के लिए, बेहतर लुक्स के लिए और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, एंड दैट इज वेयर आवर अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू बी। इस वक्त जो है देयर सीम्स टू बी लाइक अ गोल्ड रश इन इंडिया with many people from all walks of life, all demographics in tier 1, 2 and even tier 3 cities launching their own startups, in sync with their passions. But ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वक्त स्टार्टअप इंडस्ट्री की तरफ? आइए इसको देखते हैं। पहले तो लोगों को क्या लगता है कि उनके पास एक स्टार्टअप में फ्रीडम होता है टू एक्सपेरिमेंट एंड क्रिएट समथिंग न्यू विदाउट द फियर ऑफ ब्रेकिंग एनी रूल्स। उन्हें लगता है कि स्काई इज द लिमिट एंड देयर इज अ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट इन अ स्टार्टअप जो कि कन्वेंशनल कंपनीज में मिसिंग होती है। लोगों को ये भी लगता है कि एक स्टार्टअप में वो खुद बॉस हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी हायर मैनेजमेंट, they get to make their own rules, and as long as they create and make some cool product or service which has market value, so they are basically on their own, कोई ऊपर से बॉसगिरी करने को नहीं होता वहाँ पर। एक और चीज़ जो लोगों का परसेप्शन है एंड दिस इज़ अ परसेप्शन कि अगर स्टार्टअप में उनके आइडिया में दम है तो फंडिंग और इन्वेस्टमेंट की कभी कमी होती ही नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टर्स इंडियन एज वेल एज फॉरेन पैसा लगाने को तैयार है, एंड देयर इज़ नो डर्थ ऑफ सीड फंडिंग। दिस इज़ द कॉमन परसेप्शन दैट ऑल्सो अट्रैक्ट्स पीपल टूवर्ड्स द स्टार्टअप्स। और एक और चीज़ जो लोगों को ऐसा परसेप्शन है कि जब उनका स्टार्टअप ग्रो करेगा, सो देयर इज़ ऑलवेज अ गाइडेंस सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेटली, देयर विल बी सम एंजल इन्वेस्टर्स और सम people who will come and provide help when required, and this perception is very common, और जो सबसे बड़ी चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है स्टार्टअप्स में वो ये है कि जब कंपनी का वो टाइम आएगा फॉर द IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उस या फिर वो कंपनी जो है उनकी स्टार्टअप वो किसी बड़ी कंपनी द्वारा खरीद ली जाएगी, इट गेट्स टेकन ओवर बाय अ बिग कंपनी, देन द इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस और ESOPs दैट दे हैव विल ट्रांसलेट इनटू कैश एंड डिविडेंड, एंड उनको लगता है कि देयर इज़ अ बिग फाइनेंशियल विंडफॉल एंड बस लॉटरी लग जाएगी उस वक्त उनकी। सो ओवरऑल मैंने क्या देखा है कि व्हेन पीपल गेट सक्ड इनटू अ स्टार्टअप, दैट होल एक्सपीरियंस इज लाइक चेजिंग अ गोल्डन डियर, with lot of uncertainties of when they will be able to catch this golden deer, or where will they be able to catch it, or whether they will be able to catch it or not, or even if it's for real or not, So ये startup experience जो है वो एक ऐसे सोने के हिरण के पीछे भागने की तरह होता है जहाँ हमें ये नहीं मालूम कि हम उसे कभी पकड़ पाएंगे या नहीं, या वो असली है भी या नहीं, So allow me to give you some perspective of mine on the challenges with this type of thinking and the risks involved. And then I will offer you the solution of what I think is an ideal startup.
अब मैं आपको थोड़ा सा इस प्रकार की सोच में जो रिस्क और चैलेंजेस होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि एक आइडियल स्टार्टअप का सोल्यूशन आज की तारीख में क्या होता है, कैसे हो सकता है। सो किसी भी स्टार्टअप में देर आर 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स: इनोवेशन, डिसरप्शन एंड स्केलेबिलिटी। पहली बात तो ये कि जब आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आर यू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और सेटिस्फाइंग अ डिमांड, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। ओके अगर यस, हाँ आप कुछ कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व या कोई डिमांड सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सेकंड चीज़ जो आती है वो ये कि जो कंपटीशन है उसके मुकाबले में आपको वो 10 गुना बेहतर करना पड़ेगा। इफ़ यस देन यू हैव टू डू इट 10x बेटर देन योर कंपटीशन। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपकी कंपनी चल जाती है देन एज द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस ग्रोज, योर कंपनी हैज़ टू ऑल्सो ग्रो अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे आपकी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, आपकी कंपनी को भी उसी के मुकाबले में बड़ा होते रहना है। तो द चैलेंजेस जो आते हैं इस पूरे जर्नी में वो ये हैं कि पहली बात तो ये कि इंडिया में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, कितनी आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, वो जो रैंकिंग होती है वर्ल्ड बैंक द्वारा, वो बहुत लो है। एक बिजनेस, एक कंपनी या एक बिजनेस को चालू करना, द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, पेइंग टैक्सेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट एट्सेट्रा वेरी हाई, एंड द रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वेरी इजीली इन्फोर्सेबल। जो हमारे बिजनेसेस जो खुलते हैं देन उनको जब बंद करना पड़ता है, देन दैट इज ऑल्सो वेरी बिग हेडेक। आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन हु ओपन्ड अ बिजनेस, a startup in India in the food delivery business, and when the time came to close the business, तो लोकल डिलीवरी बॉयज़ को हटाने के लिए उसको लोकल पॉलिटिशियंस के साथ बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। एक और चैलेंज ये आता है कि जो सीड फंडिंग होती है, इन्वेस्टर फंडिंग होती है, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तभी आते हैं जब आपका कंपनी का वैल्यूएशन जो होता है वो 100 मिलियन प्लस का होता है। उससे कम में तो नहीं आते लोग ज़्यादातर। तब तक हमें कंपनी को चालू रखना पड़ता है यूजिंग प्राइवेट लोन्स, पर्सनल बैंक लोन्स, पर्सनल क्रेडिट कार्ड एट्सेट्रा। And the poor estimation of capital requirements and poor planning of existing resources, उसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेशन जब स्लो होता है शुरू में स्टार्टअप्स में, तो बहुत जल्दी कंपनियां जो होती हैं कैश बर्निंग जोन में आ जाती हैं, जहां एक्सपेंसेस तो बढ़ गए हैं लेकिन रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो कैचअप अभी नहीं कर पाया है। उस वक्त अपने स्टार्टअप्स को, अपने ऑपरेशंस को सस्टेन करने के लिए कैश फ्लो जो है उसको ड्रास्टिकली बढ़ाना पड़ता है। ऐसे में कभी कभी या तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं आपके वो साथ छोड़ देते हैं, या फिर कभी कभी ओनर्स को अपनी कंपनियां भी बंद कर देनी पड़ती हैं या फिर कंपनी को जिंदा रखने के लिए जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के क्वालिटी या उसके विजन को कॉम्प्रोमाइज़ करके एक प्री सेल्स मोड में चले जाते हैं टू रेज मनी। और ऐसे में बहुत ही हार्ड कोर सेल्स और मार्केटिंग करनी पड़ती है। लॉट ऑफ हार्ड कोर सेल्स एंड मार्केटिंग हैज़ टू बी डन to raise money in advance before the product and service reaches the market। और मैंने क्या देखा है कि ऐसे में जो लोग होते हैं उनकी कोर स्ट्रेंथ्स जो होती हैं, टेक्निकल स्किल्स कहीं और होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो होता है वो सेल्स में या मार्केटिंग में या इवन लोगों को हायर करने में और टीम बिल्डिंग में चला जाता है, और जो मेन काम होता है वो हो नहीं पाता है, एंड द विजन गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड इन अ बिग वे। एक और चैलेंज जो मैंने देखा है स्टार्टअप्स में जो आता है अक्सर इंडिया में, वो ये है कि जो अर्लीस्ट पीपल हम हायर करते हैं, द अर्लीस्ट पीपल वी हायर आर नॉट द बेस्ट वंस टू लीड द पीपल। जो शुरू में लोग हमारी कंपनी में हम लोग हायर करते हैं, जब कंपनी बड़ी हो रही होती है देन दे आर नॉट द बेस्ट पीपल टू लीड द टीम्स। तो बहुत सी बार क्या होता है कि करेक्ट टीम बिल्ड करने में बहुत टाइम चला जाता है हमारा। अगर आप एक बंदे को पहले लेके आए, यू बॉट अ पर्सन इन द बिगनिंग बट देन लेटर ऑन यू रियलाइज कि देयर समबडी इवन बेटर टू हायर, और दूसरे बंदे को लेके आते हैं अब, तो पहले वाले की ईगो हर्ट हो जाती है। एंड देन इन दीज टफ सिचुएशंस you are basically just trying to keep people working in the company and trying to manage egos ताकि लोग छोड़ के ना भाग जाएं। And ऐसे tough situations में when you really need a mentor, there is no one to guide you. The so-called mentors for startups are found to be extremely manipulative and selfish, and they sometimes even slow down the growth. मेरे एक फ्रेंड थे जो अपनी स्टार्टअप के लिए गाइडेंस ले रहे थे एक बहुत ही फेमस मेंटर से, जो उनको
मदद कर रहे थे. ही वॉज हेल्पिंग हिम इनिशियली टू स्टार्ट टू रन द कंपनी. बट लेटर ऑन उन्होंने फटाफट अपने ही चेंज हिज कलर्स, उन्होंने अपने पैतरे बदल दिए. एंड ही टोल्ड माई फ्रेंड कि मैं एडवाइस आपको तभी आगे और दूंगा जब आप मुझे 20% ऑफ योर कंपनीज ओनरशिप दे देंगे. व्हेन यू एक्चुअली गिव मी 20% ऑफ योर कंपनीज ओनरशिप. एंड माई फ्रेंड वॉज टेलिंग दैट ही मेड हिम अ वेरी अट्रैक्टिव ऑफर जो कि उनको एक्सेप्टेबल नहीं था. एंड इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल. सो अल्टीमेटली दे पार्टेड वेज ऑन अ वेरी बिटर नोट. काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ आई थी. तो ये अक्सर देखा गया है कि प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टार्टअप्स जो हैं वो दे आर नॉट एबल टू टेक ऑफ एंड दे गो डाउन अंडर. लैक ऑफ राइट लीडरशिप, नो प्रॉपर मेंटरशिप, नोबडी एक्सपीरियंस टू गाइड यू. कोई राइट व्यक्ति नहीं है जो आपको गाइड कर रहा है अबाउट द राइट ग्रोथ माइंडसेट एंड कवरिंग योर ब्लाइंड स्पॉट. इसकी वजह से होता क्या है कि 90% स्टार्टअप्स जो होते हैं वो विद इन फर्स्ट 4 years जो है वो फेल कर जाते हैं. एंड मे बी ओनली 10% बच पाते हैं. सो 10 में से 9 ख़त्म हो जाते हैं और एक, कभी कभी 2, मैक्सिमम एक ही बच पाती है. और जो वो एक बच पाती है उसको भी बहुत सारे चैलेंजेस एंड स्नैग्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. दे हैव मेनी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एंड मर्फीज लॉ ऑलवेज अप्लाइज हियर. दरअसल मैंने देखा गया है कि सोशल मीडिया हैज़ पेंटेड एन ओवरली रोजी पिक्चर ऑफ द स्टार्टअप्स सेंटर्ड अराउंड पैशन. जो सोशल मीडिया है ना, उसने बहुत ही ज़्यादा एक रोजी पिक्चर जो है बना दी है स्टार्टअप्स के बारे में, वेयर लोग जो हैं अपनी पैशंस फॉलो करते हैं और बहुत ही एडवेंचरस और ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल लीड करते हैं, जबकि रियलिटी में इट इज़ अ वेरी ग्रिटी एंड वेरी अनरिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस. मैंने तो देखा है वो ये कि ऑलमोस्ट हाफ द एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप शुरू करते हैं, they have reported struggling with mental health issues, what we call entrepreneurial depression. और एक्चुअल नंबर तो मैं आपको हाफ बता रहा हूँ, बट एक्चुअल नंबर तो प्रॉब्ली ज़्यादा होता है. और इतने सारे, इट्स इमोशनल रोलर कोस्टर. और इसमें इतने सारे इमोशंस आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ. चैलेंजेस इन द मॉर्निंग कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन, एंगर, नेगोशिएशन, डेस्परेशन, कॉम्प्रोमाइज, डिप्रेशन, ऑल इन वन डे. पता लगा कि सुबह कुछ चैलेंजेस आए और दोपहर तक पहुंचते पहुंचते फ्रस्ट्रेट कर दिया आपको. खाने के बाद, लंच के बाद यू आर एंग्री, अपसेट. शाम को यू आर ट्राइंग टू नेगोशिएट बीच बचाव के लिए. देन बाय द इवनिंग यू आर डेस्परेट एंड देन यू रीच अ कॉम्प्रोमाइज. और रात तक आते आते डिप्रेशन. एक ही दिन में, मतलब इट्स लाइक अ इमोशनल रोलर कोस्टर. ऐसे बहुत बार हुआ है. एक मैं आपको लग रहा होगा कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट. दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग. So why do I claim that an Amway guided entrepreneurship model is an ideal startup? मैं ऐसा क्यों claim कर रहा हूँ, ऐसा दावा क्यों कर रहा हूँ? दोस्तों, first of all, there is no inherent risk. You are starting your own Amway business with insignificant startup cost. और उसमें भी आप जो है अपना जो फुल टाइम करंट जॉब है उसको छोड़ नहीं रहे हैं टू स्टार्ट योर बिजनेस. रनिंग एक्सपेंसेस बहुत लो होते हैं. और कोई भी और कन्वेंशनल या स्टार्टअप बिजनेस होगा उसमें ये सब एडवांटेजेस है ही नहीं. आपको पूरा डिवोट करना पड़ता है. स्टार्ट और रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं. बिजनेस शुरू करने के लिए मतलब 20-30 लाख तो कम से कम मतलब बात होती है. अदरवाइज इट कैन रन इनटू इवन 7 figures. और दूसरी बात जो मेरे को यहाँ अच्छी लगती है वो क्या है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं, दे हैव अनमैच्ड क्वालिटी. जब हम लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया था, वी एक्चुअली वेंट अहेड एंड विजिटेड द न्यूट्रलाइट ऑर्गेनिक रिसर्च फार्म्स इन लेक व्यू, कैलिफोर्निया. हम वहाँ गए थे, सब चीज़ें चेक करी थी. हम लोगों ने इवन एमवे के रिसर्च लैब्स में एडा मिशिगन में क्या क्या इनोवेशंस हो रही हैं, हम लोग वो चेक करने गए थे. वी वर वेरी इम्प्रेस्ड एंड वी फेल्ट वेरी सेफ with these products because we knew कि Amway is innovating with the best in technology. तो हम लोगों ने तो अपना बिजनेस शुरू करते हुए अपने आप से 3 सवाल पूछे थे हम लोगों ने उस वक्त. पहला तो ये कि क्या हम खुद ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद करेंगे? विल वी आवरसेल्व्स लाइक टू यूज़ दीज प्रोडक्ट्स दैट वी आर रिकमेंडिंग? आंसर वाज यस. दूसरा सवाल हमने पूछा था अपने आप से कि अगर कोई हमारा बिजनेस पार्टनर नहीं भी बनेगा तब भी क्या वो लोग ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहना पसंद करेंगे? If someone doesn't become our business partner, will they still continue using these products?
आंसर वॉज यस। और तीसरा सवाल हमने अपने आप से पूछा कि क्या मैं अपने बिजनेस नेटवर्क के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता हूं? कैन आई बिकम अ वैल्यूएबल एसेट फॉर माई बिजनेस नेटवर्क? कैन आई ऐड वैल्यू in their performance in their lives? And for me, the answer was yes. Dosto, over the years, as we have gotten to know the R&D and the science behind the Amway products with 1,000 plus patents, we have found out that even the nutraceutical market, India mein, it is pegged to be 2 lakh crore rupees by 2025. Or Amway jo hai, it is the undisputed leader, number 1 in this market space. You know, they have a state-of-the-art factory in Tamil Nadu, and they also have some few organic farms that they have started in India. And the lifestyle, जिस तरह का lifestyle है इंडिया की young population का, and with the increasing private wealth coming into their hands, I think we will have a huge demand for our products. और इंडियन मार्केट जो है वो तो ever expanding है, वो ग्रो करता रहेगा, बहुत बड़ा होगा। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, which I like and love here, is that we have the highest ethical standards in the coaching and mentorship being provided. हम लोगों की जो leadership है, which provides the mentorship, it is a serving based leadership, and that makes building a sustainable business much easier for us. The level of success, of course, आप कितने सक्सेसफुल होंगे तो वो तो डिपेंड करता है आपके एम्बिशन पे, आपकी ड्राइव पे, लेकिन जो पूरा एक्सपीरियंस है आपका सक्सेस जर्नी का, सक्सेस लाइफ साइकिल का इन आवर बिजनेस, इट्स वेरी अपलिफ्टिंग एंड वेरी पॉजिटिव, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन हैंड होल्डिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट। और मैंने क्या देखा है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स दैट वी हैव विद आवर बिजनेस एसोसिएट्स, दोज बिजनेस रिलेशनशिप्स दे ट्रांसेंड into lifelong personal relationships. हमारी जो personal relationships होती हैं वो धीमे धीमे तब्दील हो जाती हैं in becoming lifelong personal relationships, जहाँ पर जो उन relationships का residual nature होता है, जो output होता है हमारे network में, it results in a very good pass on residual income, जो कि हमारे बाद हमारी next generation को pass on हो जाती है almost effortlessly. तो इस business में we are able to build some excellent valuable assets, and as the business grows, जैसे हमारा business बड़ा हो जाता है, हम अपने supporting teams जो होती हैं, जिस प्रकार से हम उनको build up करते हैं, train करते हैं, उसकी वजह से हमारा business is totally scalable. हमारा business जो है वो 1 करोड़ से 10 और 10 से 100 करोड़ जो है effortlessly चला जाता है without any headaches, because हमने क्या देखा है कि इस business में जो ecosystem है वो हर चीज़ को बहुत ही आसान बना देता है. You get a lot of help and mentorship at every level. In fact, मैंने तो ये देखा है कि हमारे बिजनेस में जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, once they become successful, they even relocate their residence. वो अपना रेजिडेंस भी चेंज कर लेते हैं, किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर they have a better quality of life, even more luxurious quality of life, और उनका टर्नओवर इम्पैक्ट होता ही नहीं है क्योंकि वो अपना पूरा जो ऑपरेशंस है बिजनेस का वो एक स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, सोहो से रन कर लेते हैं. एंड दिस होल इकोसिस्टम एंड दिस होल एनवायरनमेंट, I just love it, So the business becomes scalable, business becomes portable. And the last thing which I really love about our startup is this, our business is this, that, it is a force for good. Amway is the second company to have been awarded the United Nations Environment Program Achievement Award. Amway दूसरी ऐसी कंपनी है जिसको United Nations Environment Program Achievement Award मिला. बाकी सब जो थे वो organizations थी. Amway was only the second company ever. और उनके जो products हैं और packaging है products की, it is all environmentally friendly, biodegradable. और कोई भी testing जो होती है वो animals पे नहीं होती है. There is no testing done on animals. So there is a lot of pluses. We reduce the carbon footprints. We make this planet more habitable, more green with our products. हमारा जो manufacturing plant है, it has been given a gold, a LEED certification. Plus, as you build your business with the Amway's guided entrepreneurship model, you do your own personal branding happens, by itself. आपकी personal branding होती है which leads to a certain team culture,
और आपका जो टीम कल्चर, इट बिकम्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू एंड यू बिकम अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लीडरशिप यू एसोसिएट विद. सो होता क्या है कि यू कैन कंट्रीब्यूट टू योर सोशल कॉजेज अलॉन्ग विद योर टीम. एंड वी सी personally a huge amount of charity happening in our business teams every year. हमारे business teams में हर साल बहुत सारा charity होता है, both with time and money. और उसको अगर हम चाहें भी तो कभी भी इसको quantify नहीं कर सकते numbers में. And we are so proud of that. So दोस्तों, मैं यही बोलूँगा कि हमारे business का जो value system है इतना strong है that right now I feel that we are already setting the bar very high in terms of the way we do the business, the way we conduct, and the strong family values associated with our business. So ours is a very lean and agile business. We offer the best advantages of an e-commerce, totally online e-commerce business, but with the advantages of being a micropreneur. And you can truly build a global business in your own way with your values. So come join us and let us help you. All the best.